Hello students, today we shall study the rules of converting an active voice sentence into passive voice sentence. जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे वो नियम जो जरूरी है एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए। जब हम परिवर्तन करते हैं तो क्या नियम लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। But before starting, I request you all to kindly like and subscribe my video and don't forget to press the bell icon. So let us start. The first rule: active voice sentence having transitive verb can only be converted into passive voice sentence. That means an active voice sentence having a transitive verb. You all know what is transitive verb? In the previous video, we have discussed that transitive verbs are those verbs where the effect of the activity is passed on to the object. So let us understand with the help of some example. Suman kicks football. It's an active voice sentence because Suman is doing an activity. Yes, Suman is subject, kicks is verb, and football is object. So here, what activity Suman is doing? She is kicking. So whether the kick is transitive verb or intransitive verb, let us find out. Let us see whether the effect is falling on football. Yes, the effect is falling. The football is getting displaced from one place to another place. So it is a transitive verb and therefore it can be converted into passive voice. यानी सुमन किक्स फुटबॉल में सुमन हमारे सब्जेक्ट है, करता है, किक्स क्रिया है और क्रिया यानी वर्ब और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें यह देखना है कि सुमन तो एक्टिव वॉइस, सुमन तो सक्रिय है, एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पर किक्स जो इसने सुमन ने जो क्रिया कर ली किक की, तो क्या ये ट्रांसिटिव वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब यानी जब वो जो क्रिया होती है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर ये मालूम पड़ जाता है कि पड़ रहा है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब हो उसी को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले वाले वाक्य में फुटबॉल पे असर पड़ रहा है, सुमन ने किक मारा तो फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह गई, तो ये एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये पैसिव में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि पैसिव वॉइस वाक्य क्या है। फुटबॉल इज किक्ड बाय हर, सो दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। सो व्हाट हैपेंस हियर? Here, the subject and the object, they interchange the position. Instead of Suman comes the football, and instead of football comes Suman. So here football is. Here helping verb is used. Why? Because kicks. Let us see the kick. Is the verb in active voice. Okay. So three forms of kick are kick, kicked, and kicked. Okay. So these are three forms, and the first form, that is the kick, is used in the present tense. And in the present tense, the helping verbs used are is, am, and are. So for singular, that is football is a singular, it's one football, so is would be coming. So football is, and you should remember that in passive voice always I'm saying verb third form is used. So third form of kick is kick, kicked, kicked. So kicked has come here. Football is kicked by her. Here we are not laying emphasis on Suman. For us, Suman is immaterial. Suman is passive. It can be Suman, Lata, anyone. Here emphasis is laid on the football. In passive voice, emphasis is laid on football, that is the object. So this is a passive voice sentence. यानी इस वाक्य में क्या है कि हमने क्या करा, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनके स्थान परिवर्तित कर दिए। सुमन की जगह फुटबॉल आ गई और फुटबॉल की जगह सुमन को हमने लिख दिया है। तो यहां पे इस वाक्य में फुटबॉल और सहायक क्रिया इज इसलिए लगाई है क्योंकि अगर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वर्ब देखते हैं किक, तो किक के तीन फॉर्म्स आपको याद होंगे, किक, किक, किक। तो फर्स्ट फॉर्म किक वर्तमान काल में यूज होता है और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में यूज होता है। तो यानी ये वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में तीन सहायक क्रिया क्या होगी? इज, एम, आर। क्योंकि फुटबॉल एक वचन है तो इसके साथ लगेगा इज, तो फुटबॉल इज। और ये भी अपन को ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होता है। तो थर्ड फॉर्म किक का क्या है? किक, किक्ड, किक्ड। तो थर्ड फॉर्म किक्ड है, तो यहां पे हमने किक्ड लगा दिया। फुटबॉल इज किक्ड बाय हर। हर क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे हम सुमन पे जोर नहीं दे रहे, हम फुटबॉल पे जोर दे रहे हैं। पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट पे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। अब अपन दूसरा वाक्य लेके देखते हैं जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है। देखते हैं क्या उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। सुमन किक्स एंग्रीली। तो सुमन इज एन सब्जेक्ट, किक्स is verb, angrily is object. Suman is active. Active. Why active? Because she is kicking. That also in anger mood. So Suman kicks angrily is an active voice sentence, but here the verb is kicks. So kicks, whether the effect of the kick is falling on the object, let us find out. No, it is not. Here in the sentence, it's not revealed. So it is an intransitive verb. And we know that any active voice sentence having intransitive verb cannot be converted into passive voice. यानी इस वाक्य में सुमन किक्स एंग्रीली में सुमन सब्जेक्ट है, किक्स वर्ब है, एंग्रीली ऑब्जेक्ट है। सुमन क्या काम कर रही है ये तो मालूम है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पर क्या काम कर रही है? किक। क्या गुस्से में किक मार रही है? तो क्या इसका प्रभाव कहीं पे पड़ रहा है? ये प्रतीत हो रहा है? ये प्रदर्शित हो रहा है? नहीं। तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसीलिए इस एक्टिव वॉइस इंट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं कर सकते। नाउ लेट अस स्टडी रूल नंबर 2। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर पोजीशंस। दैट मींस, इसका मतलब ये है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल, सीता सिप्स लेमनेड। यह सब्जेक्ट is Sita, verb is sip, and object is lemonade. So Sita is doing some work, she is active. So active voice sentence, what work she is doing? Sip. So let us find out whether the effect of sip is falling on lemonade. Yes, lemonade is getting finished. So it is a transitive verb. Yes, sip is transitive verb. Okay, so an active voice sentence having transitive verb can be converted into पैसिव वॉइस। तभी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पे अपन ने लिखा सीता सिप लेमनेड। तो ये तो मालूम है सीता सक्रिय रूप से कुछ काम कर रही है। क्या कर रही है? सिप यानी चुस्की लेते हुए कुछ पी रही है। क्या पी रही है? लेमनेड, नींबू पानी पी रही है। तो ये जो सिप का जो कार्य कर रही है, क्या इसका प्रभाव लेमनेड यानी नींबू पानी में पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। क्या हो रहा है? लेमनेड खत्म हो रहा है। तो सीता जो काम कर रही है सिप का, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये इसका मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो उसी को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं। So now let's see the passive voice sentence. Lemonade is sipped by her. So what we have done? We have interchanged the position. Instead of Sita, we have written lemonade, and instead of lemonade, we have written her. Okay, just see the sentence. So here with lemonade, what is coming? Is. Why is coming? If we see the verb in the active voice, that is sip. Sip. Three forms of sip are sip, sipped, sipped. So sip is first form, that is present tense. So in present tense, what are the helping verbs? Is, am, are. Lemonade, it's a liquid. With liquid always is comes. We treat it as singular. Like ocean also, it is singular. So lemonade is, and here you all know verb third form is used. So third form of sip is sip, sipped, sipped. So lemonade is sipped by her. Here we are not laying emphasis on Sita. For us it is immaterial. It can be Sita, Geeta, Rita. So instead of Sita we have written her. Okay. Here the subject is passive. Emphasis laid on lemonade. It's a passive voice sentence. इस वाक्य में हमने क्या करा? लेमनेड और सीता के स्थान को परिवर्तन कर दिया। सीता की जगह लेमनेड और लेमनेड की जगह सीता को लिख दिया। और यहाँ पे लेमनेड के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या? इज है। क्यों इज है? क्योंकि सिप के तीन फॉर्म आपको याद है, सिप, सिप, सिप। तो पहला फॉर्म सिप वो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिप वर्तमान काल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? इज, एम, आर। ये सहायक क्रिया है।
परंतु लेमनेट, लेमनेट क्या एक वचन है, सिंगुलर। सारे जो भी तरह के लिक्विड होते हैं, चाहे ओशन यानी समुद्र ही हो, उसको भी हम सिंगुलर यानी एक वचन मानेंगे, इसलिए इज लगता है। तो लेमनेट इज, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म शिफ्ट है, तो लेमनेट इज शिफ्ट बाय हर। यहाँ सीता पे जोर नहीं दे रहे हम, सीता वाले निष्क्रिय है, कोई भी हो तो इसके सीता की जगह हर लिख दिया, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। नाउ रूल नंबर थर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी सहायक क्रिया जो होती है वो टेंस के हिसाब से प्रयुक्त होती है। एग्जांपल, गीतू ड्रोव अ कार। सो हियर गीतू इज सब्जेक्ट, drove is verb, car is object, and what work Gitu is doing? She's driving. Okay, and whether the effect of driving is coming on car? Yes, it is coming. The car has moved from one place to another place. Okay, and it was driven by Gitu. So Gitu drove a car is an active voice sentence, and drove is a transitive verb because the effect has passed. इस वाक्य गीतू ड्रोव कार में गीतू सब्जेक्ट है, ड्रोव क्रिया है, कार ऑब्जेक्ट है, पर ड्रोव का जो क्रिया है इसका प्रभाव कार पे पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि कार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब। तो इसका मतलब हम परिवर्तित कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, कार वाज ड्रिवन बाय हर। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंटरचेंज द पोजीशन, instead of Gitu we have written car, and instead of car we have written Gitu. Okay, and here drove, here the verb in active voice is drove. So three forms of drive is drive, drove, driven. So drove is the second form, that means past tense is used. So helping verb in past tense is was, were. For singular it is was, for plural were. So car is singular, so here was will come. So car was, again you know verb third form is used in passive voice. So car was driven by her. Here the subject is least important to us, it can be Sita, Geeta or Gitu. Okay, so we write her. So इस वाक्य में हमने क्या करा, स्थान परिवर्तन कर दिया, गीतू की जगह कार लिखा और कार की जगह गीतू को लिख दिया, पर कार के साथ क्या सहायक क्रिया आई, was। क्यों आई, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब ड्रोव था, उस ड्रोव किसका फॉर्म ऑफ वर्ब है, ड्राइव का, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो ड्रोव जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में आता है। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या क्या आती है, was, were। एक वचन कार है तो was आएगी, तो कार was, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आता है, तो ड्रिवन बाय हर। हर क्यों, क्योंकि हम जोर नहीं दे रहे गीतू पे, गीतू जो सब्जेक्ट है वो इमटेरियल है, पैसिव है, निष्क्रिय है, जोर कार पे दिया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब फोर्थ रूल, ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होता है। एग्जांपल, राजू एट पिज्जा एंड समोसा। सो who's the subject, Raju, what work he did, ate, or object is pizza and samosa. So actively Raju has done, so active voice sentence, what work, ate. So the effect of the work, is it falling on samosa and pizza? Yes, they are getting finished, so it is a transitive verb. So active voice transitive verb, so therefore it can be converted into passive voice। यानी इस वाक्य में राजू सब्जेक्ट है, एट यानी खाना, ये वर्ब यानी क्रिया है, और पिज्जा समोसा ऑब्जेक्ट है। पर ये जो एट शब्द है, वर्ब है, क्या इसका इफेक्ट, क्या इसका प्रभाव पिज्जा समोसा पे पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, पिज्जा समोसा खत्म हो रहे हैं। तो ये एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब वाक्य है, जिसको हम पैसिव में वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। So passive voice sentence, pizza and samosa were eaten by him. So instead of subject we have written object, and instead of object we have written subject. So pizza and samosa, why we are using verb, helping verb, because ate is the second form of eat, ate, eaten. So ate is used in past tense, so what happens, the helping verbs are was and were. For plural, why plural, because pizza and samosa, two things are there, so plural is used
plural, so it is plural, so therefore helping verb would be used. So pizza and samosa were, again verb third form is used, eaten, eat, ate, eaten. So verb third form is there, eaten by him. Here we are not writing Raju. Here Raju is immaterial to us. Here the subject is passive in nature. We are laying emphasis on what? Pizza and samosa. So this is a passive voice sentence. Okay. So इस वाक्य में क्या है कि पिज्जा एंड समोसा वर ईटन बाय हिम. जो पिज्जा एंड समोसा हमने राजू की जगह लिख दिया है और राजू की जगह हमने पिज्जा एंड समोसा लिखा और पिज्जा एंड समोसा की जगह राजू को लिखा है. तो इस वाक्य में पिज्जा एंड समोसा वर क्यों आया? क्योंकि एट सेकंड फॉर्म यानी भूतकाल है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, एट, ईटेन. तो भूतकाल में क्या हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है? वॉज वर. क्योंकि ये बहुवचन है पिज्जा एंड समोसा, तो यहाँ पे आएगा सहायक क्रिया वर्ब. और ईटन क्यों आया? क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. सो पिज्जा एंड समोसा वर ईटन बाय हिम. राजू की जगह हमने हिम लिख दिया. ठीक है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिफ्थ रूल. Fifth rule is in passive voice the subject becomes immaterial, so we don't use correct names. Passive voice में subject immaterial हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो हम उसका सही नाम प्रयुक्त नहीं करते. Example: Sita cooks halwa. It's an active voice sentence. Sita is doing some activity, that is cook. And what she is cooking? Halwa. So the effect is being formed. Effect is falling on halwa. It is getting prepared. So it's a transitive verb. So active voice transitive verb. So it can be converted into passive voice. सीता cooks halwa में सीता एक हमारी सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है? बना रही है, कुक कर रही है. क्या बना रही है? हलवा. तो इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल हलवा बन रहा है. तो ये एक्टिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब हो गया. आप इसका पैसिव वॉइस हो सकता है. अब पैसिव वॉइस में व्हाट विल डू इज दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन. तो हमने इंटरचेंज, वी हैव डन द इंटरचेंज. हलवा इज कुक्ड बाय हर. ओके. सो हलवा इज देयर. Why is this coming? Because cook is present form, right? Why? Let's see the three forms of cook. Cook, cooked, cooked. So cook is the first form, that is the present tense. So in the present tense the helping verb is mr. Halwa is singular, so is coming, and verb third form cooked is there, and instead of Sita we have written her. So that's a passive voice sentence. इस वाक्य में हलवा is cooked by her में हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन कर दिए, जैसे रूल में हमने पढ़ा. और इज इसलिए आया क्योंकि कुक जो है उसके तीन फॉर्म्स अपन को मालूम है, कुक, कुक्ड, कुक्ड. तो यहाँ कुक फर्स्ट फॉर्म यानी वर्तमान काल है. वर्तमान काल में सहायक क्रिया आती है इज एम आर. क्योंकि हलवा सिंगुलर यानी एकवचन है तो इज लगेगा. हलवा इज, और वर्ब का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, तो कुक का थर्ड फॉर्म हो गया कुक्ड. ठीक है. बाय हर, सीता की जगह हमने हर लिखा. तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है. क्योंकि हर पे हम जोर नहीं दे रहे, सीता पे जोर नहीं दे रहे, तो वो सीता हमारे निष्क्रिय है, इसलिए हर यूज कर रहे हैं. अगर दे होता तो देम होता, वी होता तो अस हो जाता. ठीक है, सब्जेक्ट की जगह. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रियली अंडरस्टूड द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस. And you can only understand this if you have watched the previous videos of transitive verb, intransitive verb, of active and passive voice sentences. If you have not seen, please see it, so then you can easily understand this video. अगर आपको आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो और आपने ट्रांसिटिव वर्ब का वीडियो अगर पहले देखा है तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. नहीं देखा तो आप समझें और फिर इस वीडियो को देखें. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन है उसको प्लीज प्रेस करें, क्योंकि आपके सहयोग बहुत जरूरी है. इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और नए वीडियोस लाएंगे. और नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ सेंटेंसेस का होगा कि एक्चुअली हम 10 सेंटेंस कुछ लिखेंगे एक्टिव वॉइस के, उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में. तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा. और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जो भी एक्सरसाइज होती है उसको जरूर प्रैक्टिस करना. इट विल रियली हेल्प यू. सो थैंक यू.